हेलो बच्चों, वेलकम टू our channel Chemistry Sun Adda. In the previous lecture, we studied that alkyl halide various classifications like vinylic, allylic, monohydric alkyl halide, etc. But in this lecture, we study nature of the alkyl halide bond, what are reactions shown by the alkyl halide, and how we prepared alkyl halide from the alcohol and the hydrocarbon. Let's begin. Hello बच्चों, welcome to our channel Chemistry Sun Adda. In the previous lecture, we had studied the classification of the alkyl halide, and in that lecture, in that lecture, we study some important classifications like monohydric alcohol, monohydric, uh, vinylic, alkylic, benzylic, etc. But in this lecture, we study the natures of the CX bond, means nature of the alkyl halide, and then we study some important reactions, how alkyl halides is formed. Let's begin. So let's start. Nature of the CX bond. Here X position are occupied by halides like fluorine, chlorine, bromine, iodine. These halides are much electronegative than the carbon because halides are in group 17 and these carbon are in group 14. So we know that electronegativity are increasing, ongoing, left to right. So group 17 are much electronegative than that carbon. So X is much electronegative than carbon. So here del minus sign are come and here del plus sign is come. Means this attack of the nucleophile means negative charge lever, and here attack of the electrophile is occur. मतलब कि so in CX bond this is much electronegative than the carbon and this is the less electronegative, means halides are much electronegative than carbon, means halides are electronegativity is higher than that carbon. So यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज चाहते हैं उनका अटैक आसानी से हो सकता है कार्बन के पास। तो अल्काइल हैलाइड इसीलिए ज़्यादातर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं, इसीलिए वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देते हैं लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से हो सकता है। कार्बन के ऊपर डेल प्लस है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हैलाइड उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है जिसके कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। इसीलिए ज़्यादातर रिएक्शन ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को शो करता है। So alkyde shows most of the reaction nucleophilic reaction because here polarity is generated. This is the much electronegative than carbon, and carbon is less electronegative than the halides. So nucleophile are attacked to that carbon much easier, and these reactions are easily shown by alkyl halides.
we have studied that we have know that electronegativity decreases on going down the group. So fluorine is much electronegative than the chlorine, than the bromine, than the iodine. So this fluorine is much electronegative than the chlorine, bromine and iodine. So this reaction CF carbon fluoride reaction are much easier than this, than this, than this. Means this is here attack of the nucleophile are much easier than that, okay. So let's begin reactions of alkyl halide. Means how we prepare alkyl halide. Means there are various methods for preparation of the alkyl halide. So first method is by direct halogenation of alkenes in diffuse of sunlight. Means हम सनलाइट का यूज़ करके HBU, UV रेज, HNU इसका यूज़ करके कैटलिस्ट CuCl2, FeCl2, FeBr2 का यूज़ करके अल्काइल हैलाइड बनाते हैं. दिस रिएक्शन आर बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड. इस डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड है ये. इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन को हेलोजन के साथ ट्रीट करके यहाँ पे सनलाइट का यूज़ करके और हाई टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, जिससे अल्काइल हैलाइड बन जाता है. बट दिस रिएक्शन इज़ नॉट अकर. मीन्स यहाँ पे ये रिएक्शन होता है लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म नहीं होता. तुरंत क्लोरोफॉर्म बन जाता, तुरंत यहाँ ये सनलाइट और HNU के साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है, फिर ये प्रोसीड करके ये बना लेता है. ठीक. मीन्स ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ पर नहीं रुकती है, ये रिएक्शन अंततः यहाँ पे रुकती है. ठीक. सो ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती है, इसीलिए यहाँ पे इसकी यील्ड ज़्यादा है. अगर हम CH4 को एक्सेस में लेते हैं, मीन्स अगर इसको एक्सेस में लेते हैं तो ये कुछ दूर के बाद ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी. तो ये नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ तक ही बनेगा. मीन्स यहाँ तक ही रिएक्शन होगा. सो बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड से हम अल्काइल हैलाइड को फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ जो मैकेनिज़्म होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है. बहुत अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए ये रिएक्शन दे दिया और ये रिएक्शन दे के पूछेगा कि यहाँ का इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है. तो अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म आपको पहचानना है, मीन्स तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को पहचानने के लिए. HELP मतलब हेल्प. अगर वहाँ पे हीट हो, हाई हीट, और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही हो, लाइट यूज़ हो रही है, जैसे HNU, UV रेज, ये सब UV रेज, HNU ये यूज़ हो रहा हो, या तो पेरोक्साइड वहाँ पे हो, पेरोक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ हो रहा हो. अब पेरोक्साइड क्या होता है, जैसे H2O2, इसमें O का बॉन्ड डायरेक्टली, O से O का डायरेक्टली बॉन्ड होता है, इसे पेरोक्साइड कहते हैं. मीन्स 2 ऑक्सीजन का डायरेक्टली बॉन्ड होता है. इसमें -1 और -1 उसके ऊपर एक चार्ज आता है, तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड होता है. तो अगर जहाँ पे हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, या तो पेरोक्साइड हो यूज़ हो रहा हो, वहाँ पे फ्री रेडिकल्स आता है. जैसे इस क्वेश्चन में देखिए,
यहाँ पे यूवी रेज यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे इसको देखकर ही हम बता सकते हैं कि यहाँ पे मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है। ऐसे आगे हम चलेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे भी एंटी मोनोकोनिक ऑफ लगता है, वहाँ पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म ही यूज़ होता है। सो जहाँ हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो या पेरोक्साइड हो यूज़ हो रहा हो, वहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म लगता है। ठीक। इफ़ वी यूज़ CH4 excess then this reaction is stop here. Means if you use CH4 in excess then this reaction is stop here, no further reaction is going. This here the yield of the product is not good, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट की जो yield होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। मीन्स यहाँ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बना, फिर डायरेक्ट ये बन गया, फिर ये बन गया, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। एक बार ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। इसीलिए यहाँ पे यील्ड इसकी ज़्यादा नहीं होती, मतलब इसको अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है। अगर हमको अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो सेम मैकेनिज़्म फॉलो होगा, सेम तरह से होता है। अगर यही अल्काइल आयोडाइड बनाना है, मीन्स आयोडीन अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम है। आयोडोअल्केन या अल्काइल हैलाइड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ऐसे नहीं प्रिपेयर होता है। वहाँ पे अगर H2 से ये देखिए हाइड्रोकार्बन प्लस I2 का रिएक्शन कराते हैं H, तो यहाँ तक तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर ये फर्दर दोबारा यहाँ से दोबारा इधर हो जाता है, मतलब फिर से ये HI जो बनता है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये इस अल्काइल हैलाइड को फिर से रिड्यूस कर देता है अल्केन में। ठीक, ये अल्काइल हैलाइड को फिर से अल्केन में रिड्यूस करता है और I2 बन जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे HiO3, कंसनट्रेटेड HNO3 और HiO4 इसका यूज़ करते हैं। ये HI को फर्दर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं करने देता है। मीन्स अगर हम HiO3 का यूज़ करते हैं तो यहाँ तक रिएक्शन होके रुक जाता है, फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकता। ये HiO3 HI को बैलेंस कर लेता है। NCERT में क्वेश्चन आता है, एक बार देखिए आप लोग। वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। हाँ, इस क्वेश्चन को भी हम कुछ देर बाद देखते हैं। सो आयोडोअल्केन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं होता है। इसके लिए हमें HiO3, HNO3 और HiO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ता है, तब ये रिएक्शन यहाँ पे जाके रुकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो मैकेनिज़्म फॉलो होता है वो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को फॉलो करता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया CBSE में 1 मार्क्स का कि यहाँ पे मैकेनिज़म्स कौन सा है, वैसे 11th का पार्ट है, यहाँ पे मैकेनिज़्म कौन सा है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म फॉलो होता है। अब हमने देख लिया कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे अल्काइल हैलाइड को अल्केन से। पहले हमने देख लिया अल्केन से कैसे अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। अब दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखेंगे कि कैसे अल्कोहल से बनता है। बाय ट्रीटिंग अल्कोहल विथ HCl, मीन्स अल्कोहल को तो पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल बाय ट्रीटिंग अल्कोहल विच HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। मतलब अल्कोहल को HCl के साथ
ट्रीट करेंगे एनहाइड्रस ZnCl के प्रेजेंस में, तो हमें अल्काइल क्लोराइड मिलता है और H2O बाहर जाता है। लेकिन अगर हमें अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है और अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो इस प्रोसेस को यूज़ नहीं करते। अल्काइल फ्लोराइड के लिए इस प्रोसेस का भी नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होता है, मतलब तुरंत बहुत एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है, इसीलिए इस रिएक्शन को नहीं यूज़ करते। इसके लिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड यूज़ करते हैं। सो अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड के लिए यहाँ पे HCl और ZnCl2 नहीं के प्रेजेंस में नहीं यूज़ कर सकती है। इसके लिए सिर्फ क्लोराइड ही ऐसे बनाते हैं। अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना है, वैसे आयोडाइड भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड से ही बनता है, लेकिन एक बार इसे देख लेते हैं। अगर आपको अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो HBr का यूज़ करें इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या KBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 का यूज़ करेंगे तब बनेगा। ऐसे अल्कोहल है HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। सिमिलरली आयोडाइड भी प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे HI और KI इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मीन्स अल्कोहल प्लस HI इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 we get alkyl iodide. So another product is with PCl3, PCl5 and SOCl2 thionyl chloride। अगर अल्कोहल का रिएक्शन इन सब के साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और इसके साथ करा दें, तब कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे इसको देखते हैं। अगर अल्कोहल के साथ PCl3 का रिएक्शन करा देते हैं, देखिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस H3PO3। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, CH3OH का रिएक्शन अगर हम CH3Cl के साथ कराते हैं तो CH3Cl बन जाएगा और H3PO3 बन जाएगा। उसी प्रकार CH3OH का रिएक्शन CH3Br के साथ PBr3 के साथ कराते हैं तो CH3Br प्लस ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। विथ PCl5, अगर हम PCl5 के साथ अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो वही अल्काइल हैलाइड बनता है। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में POCl3 और HCl बनता है, लेकिन वहाँ पे हम PBr3 का रिएक्शन करा ले रहे थे और PCl3 दोनों का रिएक्शन हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे PBr3 एंड PI3 हाईली अनस्टेबल होते हैं, देयरफॉर उनका कंपाउंड नहीं होता है, नहीं बन पाता। तो हम सिर्फ क्लोराइड ही PCl5 से मिल सकता है। सिर्फ हम यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड ही बना सकते हैं इससे। PBr3 और PBr3 अनस्टेबल होने के कारण उसका अल्काइल हैलाइड नहीं बना सकते। फिर चलिए देखते हैं SOCl2 के साथ क्या होता है। विथ SOCl2 को वहाँ SO2 लिख दिए थे गलती से, SOCl2 होगा थायोनिल क्लोराइड। अगर इसका रिएक्शन अल्कोहल का रिएक्शन HOCl2 के साथ कराते हैं तो अल्काइल हैलाइड मिल जाता है, लेकिन सिर्फ यहाँ क्लोराइड और SO2 और O2 बाहर निकलते हैं गैस के फॉर्म में। SO2 और HCl गैस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। इस मेथड का एक नेम रिएक्शन है, इसका नाम है डार्जन मेथड। लेकिन SOBr2
लेस स्टेबल होता है एंड SO3 एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए हम SOCl2 ही का यूज़ करते हैं, और इसका ही यूज़ करते हैं, और इससे सिर्फ अल्काइल क्लोराइड ही बन सकता है। ये बेस्ट मेथड है अल्काइल हाइड्राइड की प्रिपरेशन में, क्योंकि आ सकता है बिकॉज ऑफ SO2 एंड HCl इज इवॉल्व। यहाँ पे SO2 और HCl गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं और हमें सिर्फ ये मिलता है अल्काइल क्लोराइड। दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन, मीन्स दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल क्लोराइड। थर्ड है बाय यूजिंग रेड फास्फोरस विथ X2। अगर हम रेड फास्फोरस का अल्कोहल है, अगर यहाँ पे हम रेड फास्फोरस और यहाँ पे हैलाइड का यूज़ करते हैं, तो ये इसका रिडक्शन इसको डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है अल्काइल क्लोराइड में। ठीक, तो अल्कोहल से हम थ्री वेज में निकाल सकते हैं, बना सकते हैं अल्काइल क्लोराइड। पहले हम यूज़ करें सिंपल PCl3 PBr3 का यूज़ करके बना सकते हैं। दूसरा PCl5 का यूज़ कर सकते हैं, PBr5 और PI5 नहीं यूज़ कर सकते। तीसरा है SOCl2 का यूज़ करके बना सकते हैं, और चौथा है रेड फास्फोरस और X2। यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। इससे हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। और इसके पहले हमने पढ़ा कि अल्केन है, अल्केन के साथ HNu सनलाइट का यूज़ करके हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो हमने दो मेथड पढ़ा, अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, पहला अल्कोहल से, दूसरा अल्केन से। अब हम पढ़ेंगे आगे कि ये फ्लोरीन, अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, ये दोनों रिएक्शन अधिकांश नहीं मिलते हैं। मीन्स पहले वाला जो रिएक्शन था, ये अल्कीन से जो बना था, उसमें HCl और HBr तो बन जाते हैं, लेकिन HI आसानी से नहीं बनता। उसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 का यूज़ करना पड़ रहा था। तो उसके लिए हमें इन सबों का मेथड अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड का अगर हमें बनाना है, उसके लिए हमें हेलोजन एक्सचेंज मेथड यूज़ करना पड़ता है। मीन्स यहाँ पे एक हेलोजन दूसरे हेलोजन एक्सचेंज होते हैं। तो उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। 23 मिनट हो गया है, तो धन्यवाद।